Hello students, our today's topic is Mendeleev's periodic table. Okay, in our previous lecture, we studied about the Dobrynin's triad and the Newland's octave. Okay, we move on. Our third periodic table, that is the Mendeleev's periodic table. Okay, Mendeleev was a Russian scientist who developed the periodic table of elements. Mendeleev's periodic table is the most important steps in the classification of the elements. Okay, students, one thing is noted. At the time of the Dobrynians, there were 30 elements known, and at the time of the Newlands, there were 56 elements known, and at the time of the Mendeleev's, there were 63 elements were known. Okay, and all the three scientists arrange their known elements according to their atomic mass number. It's a noted. It's clear. Means Mendeleev arranged the known element, that means 63 elements, according to their atomic mass number, atomic masses. Okay, when he started his work, then 63 elements were known. So Mendeleev made the 63 cards for the each element. It's clear. That means Mendeleev ने क्या किया, उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए 63 कार्ड्स बनाए, लाइक अ प्लेइंग कार्ड्स. ओके, एंड उसमें हर एक कार्ड पर एलिमेंट्स का नेम और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने लिखी. It's clear. And he examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical property. उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, ये चीज़ एग्जामिन की कि एटॉमिक मास जो है, इफ एटॉमिक मास वरीज, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो varies. Means physical and chemical properties of the element depends on the atomic number as well as atomic mass number. It's clear, student? Okay. He made a 63 cards for the each element and listed the properties of each elements. Okay, and finally he arranged 63 elements. After study the physical property and the chemical property, he arranged the 63 elements into the 8 vertical columns and 6 horizontal rows, and he organized the periodic table based on the chemical property and the physical property. Okay, actually he arranged the elements according to their masses, but most important thing, he arranged the elements according to their physical property and the chemical property. Okay, so you can see here the Mendeleev's periodic table. It's an image of your textbook. So you can see here in a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 columns. Okay, so these 8 columns are groups. What? Groups. And at the beginning there were 6 rows. That means 6 periods. Okay, rows is called periods. It's clear. So, and in a column, you can see here in a first column R2O. What is this R2O or RO, R2O3 or RO2 or R2O3? What is the meaning of this? This is the oxides of these elements. Okay, oxides of these elements, and RH4, RH3, RH2, RH, these are the hydrides of the element. It's clear. So if we choose a single element, let's select Li, means lithium. So when lithium form the oxide, then what will be the formula of the oxide of the lithium? R2O. See in the column of the lithium, R2O means Li2O. Okay, then select the other element, C means carbon. So see here in the column
RO2 means CO2. When okay, carbon form the oxide, carbon react the oxygen and form the oxide. The formula will be RO2 means CO2, and carbon form the hydride as CH4. It's a formula of methane, CH4. Understand? Let's other example. For example, chlorine, Cl. So let's see here in the column, I2O3 is given. That means Cl2O7 is oxide of the chlorine, or hydride ClH. That means HCl is acid. HCl, hydrochloric acid. It's clear? Understand? Okay. Then move on. Mendeleev observed a periodic recurrence of an element with a similar property and the chemical property. What is the meaning of this? Mendeleev observed the periodic recurrence. What is a periodic recurrence? Periodic recurrence means after a specific period, after a specific time, after a specific elements, the property repeats. Physical property and the chemical property repeats. मतलब मेंडलीव ने ये कहा कि जब उन्होंने ये टेबल में 8 कॉलम एंड 6 रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर सम एलिमेंट्स, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी. मतलब फर्स्ट में जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो किसी टाइम इंटरवल के बाद आफ्टर सम एलिमेंट्स वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी. सेम एज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम एज केमिकल प्रॉपर्टी भी रिपीट हो रही थी. इसको हम कहेंगे पीरियोडिक रिकरेंस. अंडरस्टैंड? सो ही ऑब्जर्व्ड अ पीरियोडिक रिकरेंस of an element with a similar physical and chemical property. Physical property भी repeat हो रही थी और chemical property भी repeat हो रही थी. And on this basis he formulates the periodic law. Okay, so one question is here, who formulate the periodic law? So Mendeleev formulate a periodic law. Clear? Now what is the periodic law? The statement is the properties of the elements. Properties means the physical property and chemical property. So properties of elements are a periodic function. Properties of the elements are periodic function means after some interval. Periodic means after specific time, after the period. Okay, so property of the elements are a periodic function of their atomic masses. मतलब atomic mass के according arrange करने के बाद ही जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स थी वो कैसी थी, पीरियोडिक थी, पीरियोडिक फंक्शन. ओके, मतलब रिपीट हो रही थी प्रॉपर्टी. सो वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स. इट्स क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. देन नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ओके, तो मेरिट्स क्या थे देखो, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मेंडलीव्स की. हमने इसके पहले भी डोब्रेनियर्स ट्रायड में देखा था, उनके लिमिटेशंस देखे थे. मतलब उन्होंने उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव देखा था, उसके लिमिटेशंस देखे थे. मतलब उसमें क्या कमी रह गई, ठीक है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ. सेम है, हम पहले देखेंगे मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मतलब इसके एडवांटेज क्या थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी. इट्स क्लियर? सो फर्स्ट इज ही करेक्टेड द डाउटफुल एटॉमिक वेट. Means he corrected the doubtful atomic weight of the elements like the beryllium, indium and uranium. That means atomic mass of the some elements were revised to give them a proper place in the periodic table as per their properties. Okay, that means the previously determined atomic mass of beryllium was 14.09. Okay, but the Mendeleev changed the property, atomic mass, and the new corrected atomic mass was 9.4.
ओके, मेंडलीव ने क्या किया, प्रीवियसली डिफाइंड जो एटॉमिक मास था बेरिलियम का 14.9, वो उन्होंने चेंज किया और उन्होंने बताया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, 9.4 होना चाहिए, और जो कि क्या था, बहुत करेक्ट था। ओके, सेम एज उन्होंने इंडियम का बताया, इंडियम का जो एटॉमिक मास था वो 113 होना चाहिए, ठीक है। सो और इसके पहले सेम एज उन्होंने इंडियम और बेरिलियम, इंडियम, ठीक है, और यूरेनियम, इसका उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास करेक्ट किया। इंडियम का जो एटॉमिक मास जो प्री डिफाइंड था वो था 76, और मेंडलीव ने क्या कहा कि उसका जो एटॉमिक मास है वो होना चाहिए उसके ऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्साइड के हिसाब से उसका मास 113 होना चाहिए, जो कि बहुत क्या था, करेक्ट था, दैट वाज करेक्ट। इट्स क्लियर। Then second point, the Mendeleev kept the vacant place in the periodic table for the element. You can see here in the periodic table some places are vacant, blank space. This one, this one, this one, this one. Okay, this one, fifth number, fifth row. This. Okay, so Mendeleev kept the some vacant places. Why? Because at that time there are no element. Okay, so there are these unknown elements, 3 of these unknown elements were given the name. और उस समय जो unknown element थे उन्होंने वहाँ blank space क्यों रखी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद फ्यूचर में इस प्लेस पे प्रॉपर एलिमेंट आ सकता है, इन्वेंट हो सकता है, डिस्कवर हो सकता है, जिसका कि एटॉमिक मास ये होना चाहिए। ओके, स्पेसिफिक यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको 4th रो में एक वैकेंट स्पेस है और उन्होंने ये बताया कि इसका जो मास होना चाहिए वो 44 ही होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, प्रेडिक्ट की थी, और प्रेडिक्शन के हिसाब से उन्होंने ये बताया था कि वैकेंट प्लेस पे जो इन्वेंट होगा बाद में एलिमेंट, तो उसका उन्होंने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो प्री डिफाइंड कर दी थी। तो उसमें से 3 एलिमेंट्स हैं, ईका बोरोन है, ईका एल्यूमिनियम है और ईका सिलिकॉन है। ये क्या है ईका, एक्चुअली उस समय उन्होंने उसका कुछ नाम नहीं दिया था, बट दिस ईका बोरोन मीन्स द एलिमेंट आफ्टर द बोरोन, ईका एल्यूमिनियम एलिमेंट आफ्टर द एल्यूमिनियम, एंड ईका सिलिकॉन एलिमेंट आफ्टर द सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद में जो आने वाला एलिमेंट होगा उसका नेम, उसका जस्ट उन्होंने टेम्परेरी नेम जो था जिसको हम कह सकते हैं ईका सिलिकॉन ऐसा रखा। एल्यूमिनियम के बाद जो डिस्कवर होगा फ्यूचर उसका नाम उन्होंने टेम्परेरी उसे ईका एल्यूमिनियम कहा। ओके, एंड उसके जो मासेस थे वो 44, 68 एंड 72 उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किए, ठीक है। एंड लेटर ऑन दिस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, देयर नेम इज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब स्कैंडियम ईका बोरॉन की जगह जो फ्यूचर में जो इन्वेंट हुआ, डिस्कवर हुआ, वो जो एलिमेंट था स्कैंडियम था, ईका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम था और ईका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम था। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया, और उनका प्रेडिक्शन जो था वो इतना ट्रू था। हम एक एग्जांपल देखेंगे, हियर योर टेबल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास। मेंडलीव ने ये कहा कि जो ईका एल्यूमिनियम है, टेम्परेरी नेम जो उन्होंने बताया कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 68 हो सकता है। आफ्टर डिस्कवरी जब गैलियम उस प्लेस पर डिस्कवर हुआ तो उसका जो एटॉमिक मास था वो था 69.7, जो कि नियर अबाउट क्या था, सेम था, इक्वल था। क्लियर। एंड डेंसिटी प्रेडिक्टेड वैल्यू 5.9 एंड ट्रू वैल्यू 5.94, both are approximately equal. Okay, then melting point predicted value low, and predicted value of gallium 30.2, that is very low. Formula of chloride
ECl3 means Eka aluminum Cl3. So this is a chloride of the Eka aluminum. So the actual compound Ga gallium chloride GaCl3. ओके, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने बताया कि इसका जो ऑक्साइड होगा उसका फार्मूला इस टाइप से होगा E2O3 लाइक. ओके, सो जो गैलियम था उसका भी फार्मूला GaO2O3 हुआ. द नेचर ऑफ द ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा एंड ट्रू वैल्यू इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सो इस तरीके से उनका जो प्रेडिक्शन था वो क्या था, ट्रू था. सो ड्यू टू दिस सक्सेस all we convinced about the importance of the Mendeleev's periodic table. समझ में आया? ड्यू टू दिस सक्सेस उन्होंने जिनका जो प्रेडिक्शन था वो इतना ट्रू था कि वी ऑल कन्विंस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक Mendeleev's periodic table and this method of classification of the element was accepted immediately. Okay. So Mendeleev is known as the father of modern periodic table. What is a modern periodic table? जो टेबल हम अभी पढ़ते हैं. ओके, एंड हमारे चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिखाया था. तो सो नेक्स्ट मेरिट इज ही मेड द ग्रुप 0 फॉर नोबल गैस. मेंडलीव ने नोबल गैस जो कि उस समय डिस्कवर्ड नहीं थी उनके लिए एक 0 ग्रुप ऑलरेडी पहले से भी डिफाइन करने. हमें फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं. ये उन्होंने जो लास्ट ग्रुप था वो एक 0 ग्रुप फॉर्म किया था जो कि नोबल गैस के लिए था. ओके, so he made a 0 group for noble gases and Mendeleev created the 0 group without disturbing the original table. उन्होंने जो अभी हमने टेबल देखा तो उस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए ही एक 0 ग्रुप फॉर्म किया था. ओके, 0 ग्रुप क्यों फॉर्म किया था? ताकि फ्यूचर में जो नोबल गैसेस डिस्कवर्ड होने वाली है उनके लिए. ओके, and our next is fifth merit is he considered the similarity in the property of the elements rather than the masses. Okay, that means for example cobalt और निकिल का एक एग्जाम्पल लें. so the mass of the cobalt is 58.93 and the mass of the nickel 58.71. ओके, मतलब इसका जो इंटीजर वैल्यू 58 वो दोनों सेम है, बट 58.93 जो है वो इज़ ग्रेटर देन द 58.71. इसके हिसाब से तो फिर निकिल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो बिकॉज ही कंसिडर्ड द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, लाइक अदर एग्जाम्पल्स वेनेडियम एंड क्रोमियम. ठीक है, देन these were your merits, 5 merits of the Mendeleev's periodic table. Understand? The next one is demerits or limitations of the Mendeleev's periodic table. So जैसे कि डोब्रेनियर्स में भी हमने कुछ लिमिटेशंस देखे, न्यूलैंड में लिमिटेशंस देखे, सेम एज मेंडलीव किस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ हमें लिमिटेशंस जो है डीमेरिट्स दिखाई दिए, जिसके वजह से हमने इसे बाद में एक्सेप्ट नहीं किया. सो दैट डीमेरिट्स आर नंबर 1 द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकिल. हमने अभी देखा कोबाल्ट और निकिल का जो एटॉमिक मासेस हैं उनके जो इंटीजर हैं होल नंबर वो सेम है 58 देन 58, बट is the same. Therefore there was ambiguity regarding to their sequence in the Mendeleev's periodic table. तो उनके होल नंबर सेम होने की वजह से ये दुविधा थी कि दोनों में से दोनों का जो सीक्वेंस है उस बारे में थोड़ी उनको क्या थी, दुविधा थी. सेम एज आर्गन एंड क्रिप्टॉन के केस में भी 39.94 एंड 39.10. ओके, और दूसरा लिमिटेशन था कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव्स पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल as isotopes have the same chemical property but the different atomic masses, challenges was posted in place them in Mendeleev's periodic table. उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में सोचा ही नहीं था. उन्हें नहीं लगा कि ऐसे आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर्ड होंगे. हमें पता है कि आइसोटोप्स में मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं.
तो उन्होंने एक स्पेसिफिक मास, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हमने 1 लिया है, तो 1 के लिए तो एक स्पेसिफिक प्लेस था, ठीक है, वैकेंट था, बट ड्यूटेरियम या ट्राइटेरियम के लिए जो था, जो हाइड्रोजन के जो दूसरा आइसोटोप्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं थी। सेम एज क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, उनके लिए भी कोई प्लेस वैकेंट नहीं था। इट्स क्लियर। सो उन्होंने केवल एक एलिमेंट के लिए एक ही प्लेस वैकेंट किया, लेकिन उसके जो आइसोटोप्स हैं उसके लिए उनके पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्लेस वैकेंट नहीं थी। इट्स क्लियर। नेक्स्ट लिमिटेशन, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक masses, the rise in the atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. Clear? And next one is the position of hydrogen. Similarity with the hydrogen, that means the chlorine, halogens like a chlorine, fluorine, bromine. मतलब उनको हाइड्रोजन की पोजीशन से लेकर दुविधा थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी विद द हैलोजन्स एंड सिमिलैरिटी विद द अल्कली मेटल। वो हैलोजन से मतलब जैसे हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूल H2 बनता है ना, सेम एज Cl2, F2, Br2, हैलोजन्स का भी सेम बनता है, और सेम एज उसकी जो प्रॉपर्टी थी मैच कर रही थी अल्कली मेटल से, जैसे सोडियम है पोटेशियम है, क्या मैच कर रही थी, क्या सिमिलैरिटी है कि ये सब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। सो इससे भी वो मैच कर रही थी, तो इसके हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में सम एम्बिग्विटी वाज देयर, ओके, तो कुछ दुविधा थी। एंड नेक्स्ट वन है, लास्ट वन इज अ anomalous placement of the transitive and the coinage metal. It's very important. मतलब जो ट्रांजिटिव मेटल्स थे, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, तो इनका जो प्लेस था वो एनॉमलस था, आपको अलग अलग दिखेगा, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, मतलब उसका ये कोई सीक्वेंस में नहीं थी, ठीक है। आपको देखो टाइटेनियम है, वेनेडियम है, स्कैंडियम कहीं और है, कैडमियम है, ठीक है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, सेम एज जो कॉइनेज मेटल थी जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, देखिए तो इसके बीच में रुबिडियम आ गया। कॉइनेज मतलब जिनसे कि कॉइन था, जैसे कॉपर से कॉइन तैयार होते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इसका जो इसके लिए प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं था, ठीक है, मतलब एनॉमलस प्लेसमेंट था, कहीं भी ट्रांजिटिव मेटल एक आपको किसी ग्रुप में दिख रही है, किसी ग्रुप में दिख रही है, वैसा, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 8, क्या देखें जरा ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या पोजीशन है। हाँ, यू कैन सी हियर, ये जो 8th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, देखिए उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिए हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स एट वन बॉक्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही बॉक्स में है, लेकिन एक ही प्लेस में रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स में 4 एलिमेंट्स उन्होंने प्लेस किए हैं। सो एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8, ओके। सो दीज आर द merits of the Mendeleev's periodic table. So students, if you like this video, you can subscribe my video. If you have any doubts, so write in the comment section box. If you have any query, please write in the comment section box with your name and your class.